और क्या बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटों में बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। पहले दुर्गा पूजा पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और अब इस्कॉन टेंपल को तहस नहस कर दिया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी भीड़ ने सिर्फ मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि कई लोगों को घायल भी किया है और इस हमले में 2 हिंदू अनुयायियों की जान भी ले ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की पूरी रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुकी है और भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के रेगुलर टच में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं पर हमला करने वाले दंगाई कौन थे? किसके कहने पर दुर्गा पूजा पंडाल और फिर इस्कॉन टेंपल पर हमला किया गया? किसके इशारों पर हिंदुओं की जान ली गई? पूरे हमले की इनसाइड स्टोरी हमने ढूंढ निकाली है। नए वीडियो नए ऑडियो से साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने वाले कौन हैं। তোমাকে এই দুঃসাহস কে দিয়েছে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে বাদ দিবা বাংলাদেশ থেকে? 30 লক্ষ হিন্দুর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয় নাই। 30 লক্ষ মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। যতদিন পূর্বাকাশে সূর্যোদিত হয়ে পশ্চিমে ডুববে ততদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম থাকবেই থাকবেই থাকবে। ये बांग्लादेश का कट्टर मौलाना है। बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेशी मौलाना खुलेआम खून खराबे की धमकी दे रहा है, लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है। कैमरे पर इसने बहुत कुछ कहा है। 30 লক্ষ মুসলমান রক্ত দিয়ে থাকে এই দেশে ইসলামকে টিকাতে, আরো 30 লক্ষ মুসলমান প্রয়োজনে রক্ত দেবে ইনশাআল্লাহ। তোমাকে প্রশ্ন করছি মন্ত্রী মহোদয়, হোয়াটস দ্য মেইন কনসেপশনস অফ ডেমোক্রেসি? গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট কি বলো? এই দেশের অধিক সংখ্যক লোক এটাই চায়, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। আর আল্লাহর জিকির বন্ধ করতে চায়। আল্লাহর জিকির যেখানে বন্ধ হয় শয়তান আর তাগুতের জিকির সেখানে শুরু হয়। স্বাধীন বাংলায় তা কোনোদিন হবে না, হতে দেওয়া হবে না। এই দেশ ইসলামের বাংলাদেশ, কোন মন্ত্রীর কথায় দেশ চলবে না। বাংলাদেশ কোরআনের বাংলাদেশ, মুসলমানের বাংলাদেশ, ইসলামের বাংলাদেশ। पिछले 48 घंटों में बांग्लादेश में ऐसे दर्जनों जहरीले मौलाना एक्टिव हो गए। बीच सड़क पर मरने मारने का लाइसेंस लेकर सैकड़ों उपद्रवी उतर गए हैं। कैमरे पर एक एक की रिकॉर्डिंग है। कोई जिहाद की बात कर रहा है, कोई खून खराबे की धमकी दे रहा है। আর মুসলমানকে হত্যা করছে, বাংলাদেশ করা বেশ চালাইছে। বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ নাই। বাংলাদেশ কেন ওরা যে কোরআনের প্রতিবাদ করতে গেলে কি গুলি করার নিয়ম আছে, গ্যাস ছাড়ার নিয়ম আছে? কেন বাংলাদেশ এখন বাইরের হাত ধরে বাংলাদেশে কোনো মুসলিম রাখতে চাচ্ছে না? আমরা যদি জিহাদ করতে আমরা যদি জিহাদ করতে পারবো, আমরা কি জিহাদ করতে পারি না? হ্যাঁ, আমরা কেন পারবো না? আমরা মুসলমানের সন্তান। নারায়ে তাকবীর। इस भड़काऊ माहौल के बीच दरवाजे तोड़कर हिंदुओं के घर पर हमले हो रहे हैं। धर्मस्थल को तहस नहस किया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू बेबस हैं। बांग्लादेश के नोआखली में आतंक का तांडव हुआ। नोआखली में त्रिशूल और लोकनाथ मंदिर में कट्टरपंथियों ने कैसे हमला बोला, कैसे पंडाल तोड़ा, सबूत मिलने लगे हैं। ভিতরে ঢুকি থাকো না, বাড়ি টাড়ি সব ভাঙিয়ে লেগেছে, দোকান টোকান সব। প্লিজ তোমরা সব ভিতরে ঢুকে যাও। আরে তুমি কথা বলো, পিয়ালো লোকটা পুরো কথা বলছে না, মেজাজ খারাপ করে পিয়ালো। হ্যালো, এই টিস্যু টিস্যু সব ভাঙিয়ে আর বঙ্গলা তুই ফেলে রে, বাইরে কাজ করে ঢুকি যা। ঠিক আছে না? পাকিস্তান তো না, পাকিস্তান। আরে কাজ লেগেছে তো না। আরে কিছু হতে না।
খান পুলিশে ফোন করে না মুক্তিটা গেছে কিছু মুক্তি গেছে পুলিশে ফোন করে না প্রশাসন এখন কিচ্ছু করবে না। টানি দিলে ভালো হতো ক্লাসে বলে ইট মারে না আঙ্গুলটা দেখা যায় আঙ্গুলটা দেখা যায় পুরো পথে দিয়ে টানি দেওয়া প্লিজ ভিডিও করো কুত্তার বাচ্চাদের উপর গজব পারে না পেয়াদের বাচ্চাটি পরে আবার আসছে আবার আসা कुछ लोगों ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। जो वीडियो अब तक मिले हैं वो साफ साफ बताते हैं कि बांग्लादेश में ज्यादातर हिंदू महफूज नहीं है। মাসিমা, আপনাকে এই যে আহত করছে কালকে এই জেহাদি হামলায়, সেখানে কি ঘটনা ঘটছিল বলেন তো? আচ্ছা বলে, হ্যাঁ চলে গেছে তারা পরে বের হইছে কোন কিছু চলে গেছে বের হইছে আমি বাবার সামনে থেকে ভাতের ট্যাগ দিয়ে ওর হাত ধরে বাড়ি ভাতের ট্যাগ উনার কালকের পুরো ঘটনাটা বলেন তো। এই যে সাম্প্রদায়িক আপনাদের এখানে আমরা দেখছি যে সেখানে কি অবস্থা, দুর্গা প্রতিমা কিভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলছে এবং বিভিন্ন প্রতিমাগুলো বিভিন্ন মন্দিরগুলোকে ক্ষত বিক্ষত করে অগ্নি সংযোগ করে, মানে জেহাদি তাণ্ডবের এমন কোনো কিছু নাই যেটা তারা বাদ রাখছে। কি সকম দিয়ে মানে মই নিয়ে আসছে, মই সাথে করে নিয়ে আসছে, তাই তো প্রস্তুতি করে নিয়ে আসছে। আর এই ভাঙার সময় মুখে কি স্লোগান দিচ্ছিল তারা? আর কি বলতেছিল মুখে? সাম্প্রদায়িক না, পুরো জেহাদি তাণ্ডবে আমরা বলতে পারি। আপনারা এই যে এরকম আপনাদের এই বাড়ির এরকম মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শিবলিঙ্গটা এখানে নিয়ে আজকে দেখলাম আমাদের পাশে बांग्लादेश में सांप्रदायिक ताकतों के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स मिक्स हो चुकी है। बीच चौराहे पर अलग अलग प्रयोगशालाएं खुल चुकी हैं। ভারতে বিজেপির গুন্ডারা সেখানে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন করছে। আরএসএস মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশেও উত্তপ্ত করার জন্য শেখ হাসিনা বিদেশের শক্তিকে বুঝাতে চায়। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में अचानक ऐसा क्या हुआ? इस्कॉन टेम्पल से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल तक खून खराबे की इस प्रयोगशाला के पीछे किसका माइंड लगा है? कौन भीड़ को उकसा रहा है? हजारों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान सड़कों पर क्यों उतर आए? हिंदुओं को क्यों मारने लगे? हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ क्यों हुई? आगजनी क्यों हुई? लोगों की जान क्यों ली गई? किस तरह के वीडियो घुमाए गए? इसके पीछे किसका दिमाग था? हिंसा की जो घटना हुई उसके ठीक पहले क्या हुआ था? क्योंकि जो आपने देखा वो पूरी पिक्चर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के पीछे बहुत गहरी साजिश है और इस साजिश के पीछे हाथ है कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवी तत्वों का और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। एक दिन पहले ही दुर्गा मंदिरों में तोड़फोड़ के कुछ घंटों बाद ही बांग्लादेश के नोआखली इलाके में सैकड़ों मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी और उनकी लाश को पास के तालाब में फेंक दिया। मौत सिर्फ एक की नहीं हुई, 2 हिंदुओं की जान ले ली गई और वजह थी एक अफवाह। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई गई कि बांग्लादेश के कुमिला शहर में नानुआर दिघी झील के पास एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान को कथित तौर पर अपवित्र किया गया था। इसी के बाद भीड़ उग्र हो गई। इस खबर की आग में घी डालने का काम किया बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने। প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন মদিনা মুনাওয়ারার সনদে আলোকে দেশ চলবে। তুমি মন্ত্রী ইসলাম দ্রোহিতা করছো, দেশ দ্রোহিতা করছো, নেত্রীর আনুগত্যকে বর্জন করেছো। 24 ঘন্টায় তুমি লাইভে এসে ক্ষমা চাও। তোমার সারা দেশ থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করব তোমার মতো কুলাঙ্গার মন্ত্রীকে বহিষ্কার করো। না, নাস্তিকের চামড়া আমরা তুলব না, আমরা সন্ত্রাসী না। নাস্তিকের কাছে আমরা আল্লাহর কোরআন তুলে ধরব। বড় বড় নাস্তিক সংশয়বাদী আমার কাছে বসছে। আলহামদুলিল্লাহ
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গোলামের কাছে তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। इन भड़काऊ बयानबाजियों के बाद ही उन्मादियों की भीड़ ने चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बंशखली और कॉक्स बाजार के पेकुआ में हिंदू मंदिरों और पंडालों पर हमला कर दिया। ये सब कुछ बांग्लादेश की पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था, मगर पुलिस तमाशबीन बनी रही। हंगामा होता रहा, तोड़फोड़ होती रही और इस तरह कट्टरपंथी विचारधारा वाले उपद्रवियों ने नॉन स्टॉप तांडव मचाया। तो पूरा दुनिया देख रहा है क्या हुआ था। जो नहीं होना था वास्तव में वो हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे भक्त जब हजारों की संख्या में बहुसंख्यक समुदाय के लोग अटैक किए वहाँ के पंडाल पे, दुर्गा मंदिर में, हिंदू के जितने मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में, तो हमारे भक्त लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और पुलिस को बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की जो पुलिस है आई ही नहीं। और पुलिस तब आती है जब सारा खेल खत्म हो जाता है, सारा तांडव नृत्य हो जाता है, सब तहस हो जाता है। हमारे प्रभुपाद जी की मूर्ति तोड़ दी गई, सोचने वाली राधा कृष्ण की मूर्तियाँ तोड़ गई दूसरे मंदिर में, तो कितना तहस नहस किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश के नोआखली का कट्टरपंथी विचारधारा से क्या कनेक्शन है, हम इसकी बात आगे करेंगे। पहले ये देखिए कि जब बांग्लादेशी पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आया, उपद्रवियों पर कार्रवाई को कहा गया, तो क्या तस्वीरें दिखाई दी, कैसे ओपन चैलेंज दिया गया। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম এই মুহূর্তে ইসলাম প্রিয় মানুষ পুলিশকে দাবিয়ে দাবত দিয়ে বাংলাদেশ চাঁদি বরফ, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মুসলমানের বাচ্চা পরিচয় হয়ে গেছে। একটু পর্যায়ের বিরুদ্ধে সরকার মুসলমান না, সরকার তাগুত। এই সরকার তখন মুসলমান হতে পারে না, প্রত্যেকটা বাহিনী কাফের অন্তর্ভুক্ত। এই বাংলাদেশে বাংলাদেশের মুসলমানের উচিত প্রস্তুতি নেওয়া। আপনারা দেখছেন ওইদিকে বিশাল বড় একটি পুলিশের অবস্থান এবং এইদিকে এইদিকে গোলাগুলি হচ্ছে। আপনারা দেখছেন প্রচুর গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, রাবার বুলেট। उपद्रवी भीड़ पर पुलिस के गोलों का कोई असर नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो बेकाबू हो गए। इस्कॉन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के नोआखली में कट्टरपंथी कितनी बड़ी प्लानिंग करके आए थे। सुनने के बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, क्योंकि उस समय जिस समय सब तोड़फोड़ शुरू हो गया तो कोई काउंट थोड़ी कर सकता कितने लोग आए हैं, है ना। लेकिन अंदाज़ा ये था कि निश्चित रूप से हजारों की संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। और जब तक लोग को सुन पाया था तो मारना पीटना सब कुछ करना शुरू कर दिए, तो उसमें होश कहाँ रहता है। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत ही दर्दनाक हुआ। इसकी निंदा पूरे दुनिया में होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है वहाँ पे। उपद्रवियों द्वारा मंडप, मूर्ति, पंडाल और मंदिर सबको निशाना बनाया गया। जो रास्ते में आया उसे मार डाला और इसके लिंक जमाते इस्लामी से जुड़े हैं। इसी संगठन ने पूरे मामले में आग लगाने का काम किया। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान जैसे नारे गढ़े हैं। जमाते इस्लामी इस्लाम के कट्टर और रूढ़िवादी रूप को बांग्लादेश में लाना चाहता है। इसी कड़ी में इस तरह के नारे गढ़कर ये संगठन वहां के युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। इन हमलों के जरिए बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की मंशा है और एक इरादा शेख हसीना की सरकार को बदनाम करने का भी है। 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बांग्लादेश प्रधानमंत्री को बताया था कि जो 9 दिन से जो वायलेंस चल रहा है उसको रोका जाए और चिंता व्यक्त की थी। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद कल शाम को, कल दोपहर में अराउंड 2 बजे हमारा जो इस्कॉन नौखाली का जो मंदिर है वहाँ पर 500 से अधिक लोग आए और पहले बाहर में जो दुर्गा पूजा का पंडाल था और दुर्गा पूजा का विग्रह था उसको तोड़फोड़ किया, जला दिया पंडाल को। और उसके बाद 200 जन हमारे मंदिर के अंदर घुसे, वहाँ पर जिसको भी पाया बहुत बुरी तरह से पीटा। हमारे भक्तों ने उनसे फाइट बैक किया
लेकिन 200 जन और हमारे 50 भक्त थे, और उसमें से आज हम लोग को पता चला कि 2 भक्त नहीं रहे, और एक भक्त जो कल से मिसिंग था उसकी बॉडी तालाब से जब ऊपर आई सवेरे तब हमें पता चला। यहाँ पर जिस नोआखली का जिक्र हो रहा है उसका नाम इतिहास में भी दर्ज है। बांग्लादेश का ये वही नोआखली है जिसे महात्मा गांधी ने कभी शमशान कहा था। सालों पहले सांप्रदायिकता की आग में जब नोआखली झुलस रहा था, तब महात्मा गांधी 7 नवंबर 1946 को वहां पहुंचे थे। ये वो दौर था जब जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को नजरअंदाज किया जाने लगा, और तब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी गई। साल बदल गए, दशकों के बाद हालात आज भी नहीं बदले। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हिंसा को लगातार अंजाम दिए जा रहा है। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के नोआखली में आज भी बर्बरता की जा रही है, और अब की बार हुआ हमला इसका लेटेस्ट प्रूफ है। कल रात में मैं प्रधानमंत्री के रेसिडेंस में फ़ोन भी किया था और रिक्वेस्ट किया था कि प्रधानमंत्री से ये अपील किया था कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें और इसका मतलब इमीडिएटली इस वायलेंस को स्टॉप करना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशन में भी चिट्ठी लिखा है और यूनाइटेड नेशन को आगे बढ़ के इसकी कंडेम करना चाहिए, एक डेलीगेशन इमीडिएटली भेजना चाहिए, ताकि जब इंटरनेशनल अटेंशन आएगा तब हो सकता है कि वायलेंस रुके। क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो कोशिश कर रही हैं, कर्फ्यू भी लगाया है, लेकिन ये किसी तरह थम नहीं रहा है। नोआखली में सुनियोजित दंगा पहले भी हुआ, आज भी हुआ। पाकिस्तान से प्लानिंग पहले भी हुई, आज भी हो रही है। मकसद सिर्फ एक है, बांग्लादेश की सरकार की साख को तोड़ना और भारत को प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करना। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि अब की बार हिंदुओं को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथियों की खैर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।